So previously we were talking about the velocity of sound. तो न्यूटन ने जो वैल्यू कैलकुलेट किया था, दैट वैल्यू came close to somewhere around when it was substituted. सब अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो velocity of sound that was calculated by Newton comes out to be v is equal to 280 मीटर पर सेकेंड, जिसके लिए उन्होंने फॉर्मूला यूज किया स्क्वायर रूट ऑफ p अपॉन रो. एक्चुअली फॉर्मूला होता है velocity of sound. The actual formula for velocity of sound comes out to be square root of E upon rho, where E is the elasticity of the medium. Elasticity of the medium. ठीक है, elasticity of the medium. So this is the actual formula. Okay. इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूंगा, which comes from HC वर्मा. HC वर्मा की जो बुक है वहां से हम इसका कुछ बैकग्राउंड लिखे हैं. यहाँ तक आ तो गए हम, ठीक है, isn't it? तो let's talk about few things which are coming from, क्योंकि वो चीजें अपने को चाहिए होगी while solving the problems of HC वर्मा. तो चलिए देखते हैं HC वर्मा बुक में जाके velocity of sound के लिए, ठीक है, चलिए देखते हैं. So this is HC वर्मा बुक. ये यहाँ पर साउंड तैयार हो रहा है. दिस इज द ट्यूनिंग फोर्क. ट्यूनिंग फोर्क को जब बैंक किया जाएगा तो वहां पे इस तरीके के कुछ वेरिएशन इन प्रेशर वेरिएशन तैयार होते हैं. Isn't it? Do we see some pressure variations there? कि there is the compression over here. If I want to explain you, so there will be यहाँ पर compression है, यहाँ पर rarefaction है, यहाँ पर compression है, यहाँ पर rarefaction है, यहाँ पर compression है, यहाँ पर. So there are some molecules. समझो कि this is the wave which is traveling in the air. So some air molecules they are bound to come closer. तो यहाँ पर pressure ज़्यादा होगा, यहाँ पर pressure कम होगा. So there is necessarily the difference in the pressure. There is maximum pressure here, minimum pressure here. That's what we see here. Delta P. Delta P is the maximum increase in the pressure above its normal value. यहाँ का pressure normal होगा, यहाँ का pressure minimum होगा, यहाँ का pressure maximum होगा. So there is difference in the pressure. और उसका equation जो आएगा, so हम ये बोलते हैं यहाँ पे कि जो sound waves है उसे अगर हमें explain करना है, तो sound waves कौन से type के waves है भाई? Sound waves are actually the longitudinal waves. Sound waves कौन से type के waves है? Longitudinal waves, isn't it? और उसे अगर हमें express करना है तो अगर longitudinal waves है, we say here longitudinal wave, displacement wave and the pressure wave. तो यहाँ पर हमने एक वीडियो भी जो भी देखा था, उस वीडियो में भी हमने देखा था कि जब ये longitudinal waves which are comprising of compressions and rarefaction, यहाँ पर compressions और rarefaction होते हैं, isn't it? तो जहाँ कहीं compression होता है तो the particles are coming closer to each other, and rarefaction जहाँ पर होता है वहाँ पर particles are going away from each other, isn't it? So यहाँ पर pressure is increased और यहाँ का pressure जो है वो reduce हो जाएगा. अच्छा, ये particles एक दूसरे की तरफ move भी होते हैं, बराबर है क्या? So जैसे वहाँ पर pressure increase होता है वैसे वहाँ पर जो particles होते हैं वो इस तरह के movement होता है particles का, बराबर है क्या? So particles in the compression zone they are coming closer to each other, and in the rarefaction zone they are going away from each other. So we say the longitudinal wave in fluid. Fluid का मतलब होता है liquid हो या gas हो. Can be described either in terms of longitudinal displacement, क्योंकि वो particles longitudinal, the wave is going in which direction? The wave is going in this direction. इस दिशा में wave जा रहा है और इस दिशा में जाते जाते particles are closer, coming closer or going away from each other. Okay, so this kind of movement is seen there.
This kind of movement is seen there when the sound wave is a type of longitudinal wave. ठीक है, isn't it? तो इस तरह का मूवमेंट, तो यहाँ पर देयर इज डिस्प्लेसमेंट, देयर इज चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट. अब कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा डिस्प्लेस होते हैं, कुछ पार्टिकल्स, सो देयर इज द डिस्प्लेसमेंट एंड देयर इज द प्रेशर वेरिएशन आल्सो, वेरिएशन इन द डिस्प्लेसमेंट एंड वेरिएशन इन द प्रेशर. तो इस तरीके से जो साउंड वेव है, वी से द लॉन्जिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट सफर्ड बाय द पार्टिकल. तो ये जो इक्वेशन हम लिखते हैं, it can be written in the form of displacement or it can be written in the form of pressure also. जो साउंड वेव जाता है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन या प्रेशर का इक्वेशन लिख सकते हैं. अकॉर्डिंगली देयर इज डिस्प्लेसमेंट वेव एंड देयर इज अ प्रेशर वेव रिलेटेड टू दैट. तो उस वेव का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो उस वेव का इक्वेशन वी कैन राइट विद दिस. द वेव can be described by the equation. So this is the equation of the displacement. Consider the wave going in the x direction. तो ये जो वेव है कौन सी दिशा में जा रहा है? It's going in this direction. ठीक है? It's going in this direction. Suppose that at any time t, a particle at the undisturbed position x. So ये है particle which is at position x. This is position x. It suffers a displacement s. इसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये वेव ऐसे जा रहा है तो इसको डिस्प्लेसमेंट मिलता है. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दो. यस, प्लीज चेक हियर. सो दिस इज द पार्टिकल at position x and it suffers this displacement. It suffers this displacement. Okay? In s direction, in the x direction, the wave then can be represented. So ये है the displacement equation. I would just copy down this thing. इसे मैं copy करूँगा. This is the displacement equation. Okay? यहाँ पर मैं उसको copy करूँगा. We call this as the displacement wave का equation. Equation of displacement wave. This is called as equation of displacement wave. Now these equations अगर हम देखें गौर से तो ये वेव इक्वेशन के साथ मेल खा रहा है. S0 क्या होता है? S0 is its amplitude, displacement का amplitude. S is the displacement. Sin of omega t, ये इक्वेशन गौर से देखिए. ये इक्वेशन जो है इसमें it is a function of t minus x upon v. t minus x upon v का फंक्शन है. That means it is traveling along the positive x direction. Is this clear to you all? It is sine of these things. Sine of these things. And S0 is the displacement amplitude. Is that clear? Well, go back to second part of it. चलिए आगे चलते हैं. अब इस वजह से वहां पर यहाँ पर एक डेरिवेशन दिया है. I'll not try to explain you the derivation. इसका डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख लेते हैं. कंसीडर द एलिमेंट. तो ये एलिमेंट, इसके आगे और एक एलिमेंट है which is at a position x plus delta x and this will suffer the displacement s plus delta s, isn't it? तो यहाँ पर what will be the volume associated? What is the increase in the volume? So this will be the increase in the volume. ये है एलिमेंट. तो एलिमेंट का एक एंड है x और दूसरा एंड है x plus dx. This is the element. तो इसका जो increase in the volume is given by a into delta s, etc. etc. Will not go in the details of this derivation because it is not in the scope. So I'll directly go for the. तो इसकी वजह से there are pressure variations and the pressure displacement is given by this. This is the equation of the pressure wave. This is the equation of the pressure wave. ठीक है? This is the equation of the pressure wave. Let me copy down this. तो ये इक्वेशन हमें मालूम होनी जरूरी है. इसके लिए मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँ. We say this is the equation of the pressure wave. तो जब ये वेव जाता है तो वहाँ पर change in the displacement और change in the pressure. So we'll say this is the equation of pressure wave. Okay? तो ये चीजें हमारे HSC में नहीं है. इसमें ये जो होता है, यहाँ पर साइन है तो इधर कॉस है.
cos of omega t minus x upon v, आपको ये याद रखना पड़ेगा. This is the pressure amplitude, मतलब maximum pressure. We call this as pressure amplitude. I'll denote this by P0. So what is P0? P0 is equal to P S0 omega upon V. V क्या है? V is the bulk modulus. V को कहते हैं bulk modulus. और इसका फॉर्मूला होगा V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V. ये क्या फॉर्मूला है? ये आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में पता चलेगा. टॉपिक नेम इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी. तब तक आपको इसको एज्यूम करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना. So this is the equation of the pressure wave. I can rewrite this equation in the form. I can rewrite in the form P is equal to P0 into cos of omega t minus x upon v. V is the velocity of the wave. V is the velocity of wave. And S0 is the displacement amplitude. Well, let's go to the next part of it. तो ये रहा. अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो हमने P0 के लिए एक्सप्रेशन लिखा है, लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दिस एक्सप्रेशन. P0 is equal to B S0 omega upon V. Now what is the velocity of the wave? Velocity of the wave is given by V is equal to n lambda, and omega is equal to 2 pi n, frequency angular velocity. So when we substitute here B S0, this is 2 pi n upon V is equal to n lambda. So n gets cancelled. So we get 2 pi upon lambda. ये 2 pi upon lambda हमने कहीं पे देखा है. Can you tell me what is this 2 pi upon lambda? 2 pi upon lambda के बारे में मैंने कल आपको बताया था. If you remember, what is 2 pi upon lambda? यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 pi upon lambda. 2 pi upon lambda is k, absolutely correct. It is the value of k. और k जो है इसे हम वेव नंबर भी कहते हैं. We also call this as wave number. ठीक है. इसको अगर हम n से मल्टीप्लाई करें, जो मैंने यहाँ पर कल भी शायद एक्सप्लेन किया था आपको, k के लिए एक्सपेरिमेंट, कि अगर हम k के लिए मल्टीप्लाई करें तो k is called as wave number. So let's come back here. So what is this 2 pi upon lambda? This is called as k. This is called as wave number. हम इसे कहते हैं wave number. So k के लिए ये एक फॉर्मूला है, या फिर अगर मैं इसको 2 pi n से मल्टीप्लाई करूंगा तो that is also equal to omega upon v. That is also equal to omega upon v. तो ये होगा wave number. Is this okay? So अगर मैं इसको in terms of k लिखूं, if I write it in terms of k, then what is the pressure amplitude is given by k? So it is B S0 k. It is B S0 k. यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया है. B S0 k. This is the same equation. B S0 k, which I have written there, isn't it? So that is about the displacement wave. ठीक है. इसी के ऊपर कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर आगे सॉल्व करने पड़ेंगे. Now if I there is one more derivation. जो डेरिवेशन हम नहीं करेंगे कि भाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड वेव. तो अगर ये है डिस्प्लेसमेंट का वेव और ये है प्रेशर का वेव, अगर ये दोनों इक्वेशंस हम देखें यहाँ पे ध्यान से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्रेशर वेव. अब ये प्रेशर यहाँ पर एक्ट करेगा तो देयर विल बी सम फोर्स एक्टिंग. ये एक एलिमेंट है. दिस इज द एलिमेंट ऑफ द से मीडियम. इसके यहाँ पर एक प्रेशर एक्ट हो रहा है और यहाँ से एक प्रेशर एक्ट हो रहा है. अब दोनों प्रेशर का मतलब है यहाँ पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, और यहाँ पर एक फोर्स एक्ट हो रहा है. और इन दोनों फोर्स के चलते व्हाट इज हैपनिंग हियर, वो इसके आगे जा रहा है. अब आगे जा रहा है मतलब देयर इज, सो ये फोर्स वाला इक्वेशन अगर हम कंसीडर करें तो फाइनली जाके मुझे वहां पर मिलेगा द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव. दिस इज द इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव, जो हम डेरिवेशन नहीं देखेंगे बट डायरेक्टली एक्सेप्ट करेंगे. इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b बाय रो. ये जो इक्वेशन आएगा वेलोसिटी ऑफ द वेव,
अगला इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ वेव, जो हमने HSC के बुक में देखा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b अपॉन rho। उन्होंने उसको E बोला है, इन्होंने इसको B बोला है। B इज द बल्क मॉडुलस, HSC के बुक में इसको E बोला है। The name is same, bulk modulus of elasticity, bulk modulus। तो ये एक important formula है, b by rho बोलो square root of b by rho या square root of E by rho, जो भी है, ठीक है। तो this is the next equation, an important equation। अब इसके बाद इसको न्यूटन ने क्या किया, लाप्लास ने क्या किया, ये हम देख रहे थे, isn't it? तो इसके बाद न्यूटन ने उसको एज्यूम किया कि वो आइसोथर्मल है। मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था या कॉन्सेप्ट बताया था आइसोथर्मल एंड अडायाबैटिक। न्यूटन एज्यूम कि वो आइसोथर्मल है, तो इस वजह से वहां पर उसको न्यूटन का ये फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p बाय rho। दिस इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर, और उसका वैल्यू उसको 280 आया। लेकिन बाद में लाप्लास ने उसको करेक्ट किया। अब लाप्लास ने उसको क्या करेक्ट किया, न्यूटन्स फॉर्मूला इससे मिलेगा, न्यूटन अज्यूम्ड, न्यूटन ने क्या अज्यूम किया, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेकिन वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, जहां कहीं कंप्रेशन है वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये रॉन्ग था। और वो कौन सा प्रोसेस होता है, अडायाबैटिक प्रोसेस। मैंने आपको साइकिल के हवा का पंप बताया, पंप के बारे में बताया। आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, अडायाबैटिक प्रोसेस इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इसमें नो हीट एक्सचेंज होता है, इसको टाइम ही नहीं होता, नो हीट एक्सचेंज। अगर कल मैंने आपको जो बताया था वो अगर आप लोगों ने किया होगा या याद रखा हो, तो देयर इज नो हीट एक्सचेंज हियर, और यही प्रोसेस होता है। लेकिन न्यूटन ने ये वाला प्रोसेस अज्यूम किया, जिसके चलते उसको वेलोसिटी ऑफ साउंड उसने दिया स्क्वायर रूट ऑफ p बाय rho, जिसका वैल्यू उसको मिल गया 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज लाप्लासे, लाप्लासे। उन्होंने इसको करेक्ट किया, बोले कि न्यूटन जो बोल रहे हैं बाकी सब सही है, लेकिन एक चीज गलत है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है बल्कि वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। एंड देयरफॉर ही सेड कि ये जो b का वैल्यू है वो कितना लेना चाहिए, तो b का वैल्यू लेना चाहिए गामा p बाय, मतलब जो वहां पर उन्होंने p लिया था उसकी जगह पर गामा इनटू p लेना चाहिए। तो ये गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ Cp अपॉन Cv। These are the specific heat. This is the specific heat at constant pressure and this is the specific heat at constant volume. एयर के लिए इसका वैल्यू, दिस रेशियो इज 1.4। तो न्यूटन का जो भी कुछ आंसर आ रहा था, उस आंसर को स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम 1.4 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज बाकी का p बाय rho ही है, तो वहां पर उसका वैल्यू आता है 338 मीटर पर सेकंड, विच इज फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द एक्चुअल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है 330 मीटर पर सेकंड, तो उसके साथ ये वैल्यू पूरा मेल खा रहा है। तो लाप्लास को 332 सॉरी 332 का आया था उसको, which is fairly accurate, isn't it? So this is Laplace's correction and this is the formula, Laplace's formula for the velocity of sound in the air। यही फॉर्मूला अपने को यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखिए न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज मॉडिफाइड बाय लाप्लास। दिस इज HSC टेबल, तो वो है लाप्लास का फॉर्मूला, लाप्लासेस फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर। So what is that formula? ये रहा वो फॉर्मूला, गामा p बाय rho। ओके, इस फॉर्मूले के साथ उनको वैल्यू आया 300, देखिए 1. गामा का वैल्यू होता है 1.41, p का वैल्यू जो न्यूटन ने किया था वही p कितना होता है, p इज इक्वल टू h rho g, h हाइट 0.76, rho इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड g इज 9.8। तो ये अपने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता रहा है, rho इज द डेंसिटी ऑफ एयर 1.293, तो ये वैल्यू आता है उसका। ओके, this is the value that we get there. The value is in close agreement. Any doubts about that? Is this clear? Hello? Any doubts about this? Hello? Okay, let's proceed now. So that was about Newton's formula. अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं, तो उसके नहीं, उसके पहले आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे।
और आपको एच सी वर्मा के कुछ फॉर्मूले में बताना चाहूंगा, जो फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव्स, ये क्या है, और इंटेंसिटी, और मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलिए हम HSC टेक्स्ट बुक में चलते हैं आगे। Go to HSC textbook first. उसके बाद हम वो चलाएंगे। Effect of pressure on velocity of sound. Factors affecting the speed of sound. There are three factors which we are going to talk about. A, pressure. B, temperature. And C is the humidity. Okay? इसलिए क्या फर्क पड़ता है velocity of sound के ऊपर। तो चलिए चलते हैं effect of all these things on the velocity of sound. So I'll first of all talk about this one. Effect of pressure on the velocity of sound. चलिए देखते हैं। Now let us say कि Laplace's formula क्या बोलता है। Laplace's formula says V is equal to, क्या होता है Laplace's formula? According to Laplace's equation, the velocity of sound is given by V is equal to square root of gamma T upon rho. कैसा होता है Laplace's equation, बराबर है। Now what is rho? Because gamma is the ratio of specific heats, जो मैंने आपको बताया। Gamma is equal to Cp upon C. P is the pressure, atmospheric pressure, and rho is the density of the air. Rho is the density. और ये जो density is equal to mass upon volume, mass upon volume. तो if I substitute here, ये क्या मिल जाएगा? तो for velocity of sound is equal to gamma T and rho is mass upon volume, तो ये volume ऊपर चला जाएगा, बराबर है क्या? Isn't it? अब हमें पता है कि PV is equal to nRT, ऐसा एक इक्वेशन होता है ना। I think this is ideal gas equation, पता है आपको? This is called as ideal gas equation. This is called as ideal gas equation. And then there is something called as Boyle's law. Boyle's law पता है आपको? Boyle's law बोलता है if temperature is equal to constant at constant temperature, अगर temperature constant है, ये n क्या है? N is the number of moles. ये आप लोगों ने इक्वेशन देखा है? हेलो, this is called as ideal gas equation, chemistry में, and this is the universal gas constant. R is the universal gas constant. तो अगर temperature and T is the temperature, this is the pressure, this is the volume, and this is the temperature. ठीक है? तो this equation is called as ideal gas equation. तो बहुत important equation है, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो इसमें in this equation अगर temperature constant होता है तो Boyle's law क्या बोलता है? Boyle's law बोलता है if the temperature is constant, तो ये pressure into volume is equal to constant. This is Boyle's law. तो जब तक pressure constant है तब तक ये पूरा का पूरा constant है। Are you understanding that? जब तक temperature constant है, so this is equal to constant if temperature is equal to constant. क्योंकि temperature constant होगा तो P into V is constant, मतलब P is inversely proportional to V, ऐसा होता है। तो what we conclude here, if I substitute यहाँ पे ये अगर करूँगा तो this will be velocity of sound is equal to gamma into PV के जगह पर मैं लिखूँगा nRT upon m. तो what will be my conclusion here? As long as the temperature is constant, as long as temperature is constant, temperature जब तक constant है तब तक PV constant होगा and there is no change in the velocity of sound.
no change in velocity of sound even if pressure changes. Even if pressure changes. प्रेशर अगर चेंज भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है. Is that clear? Now let's see what the HSC book has to say about it. तो HSC book में वही बताया है और यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं फाइनली देखिए. Let's see. Therefore, at constant temperature, a change in the pressure has no effect on the velocity of sound. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, as long as the temperature is constant, change in the pressure will not cause any difference there. Is this clear to all? यही मुझे आपको बताना था. समझ में आ गया? So this is about the first thing. This is about the first thing. अब दूसरा हम देखेंगे effect of change in the temperature. तो भाई मैंने यहाँ पे तो ऑलरेडी वो मुझे मिल ही गया है ना एक्सप्रेशन. I already got the expression here. So I'll find out what is the effect of change in the temperature. I'll find out what is the effect of change in the temperature. Temperature change होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा भाई? तो देखते हैं. यहाँ पर effect of change in the temperature on the speed of sound. तो I'll carry forward the same equation. देखिए यही equation मैं नीचे ले लेता हूँ क्योंकि मैंने वो अभी derive किया है. I'll take here the same equation. What does the equation has to say? ये equation में gamma is a constant, number of moles constant, ये सारी चीजें constant से देखेंगे यहाँ पे. These are all the constants. M is the molecular weight. M या molar mass बोल सकते हैं इसको. M को हम mass भी बोले या molar mass बोल सकते हैं. Molar mass. तो ये सब चीजें कांस्टेंट है. So finally what can I say? Speed of sound is directly proportional to the square root of the temperature. अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो PV is equal to nRT है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी यूज किया जाता है ज्यादातर केमिस्ट्री में. तो आप लोगों का भी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. उसके साथ नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स n is the number of moles. देखिए गैस जो होता है उसको मेजर करने के लिए लीटर में, किलो में, डजन में नहीं मेजर कर सकते. तो गैस को मेजर करने के लिए the unit used is number of moles, isn't it? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ोगे अभी. ठीक है. तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज द नंबर ऑफ मोल्स. एवोगाड्रोस नंबर, वो सारे कंसेप्ट इसी से रिलेटेड है. तो इसमें टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर इज ऑलवेज expressed in Kelvin. Okay, Celsius में नहीं होता है. So temperature in Kelvin is equal to 273 plus temperature in Celsius और centigrade scale. ठीक है. तो यहाँ पर मुझे absolute temperature में मेजर करना पड़ेगा वो, and velocity is directly proportional to the square root of the temperature. Velocity is directly proportional to the square root of the temperature. तो अगर V0 is the velocity at 0 degree Celsius, 0 degree Celsius का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 273 केल्विन, जिसे मैं T0 बोल देता हूँ. तो if that is denoted by T0. Okay, so अगर ये velocity, if I'll take the ratio of these two, so this is going to fetch me what? V upon V0 is equal to square root of T upon T0. Is that clear? And that's what the formula this HSC book is telling us about. तो ये वही formula है जो यहाँ पर मैंने दिया हुआ. Is that clear to all? ठीक है. अब इसके ऊपर उन्होंने फिर 1 डिग्री से अगर चेंज किया जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर दिया है. So let me say, अगर ये हमें डिराइव करना पड़ेगा. Now what is the temperature T? Temperature in Kelvin is equal to temperature in Celsius plus 270. This is in Celsius basically. Okay, rise in temperature, यहाँ से इसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना है तो T का है. And T0 is equal to 273, वो तो हमको पता है. So let me just write down, this is V upon V0 is equal to square root of T plus 273 upon T. That is equal to 1 plus 273 upon T raised to half. अब मैथमेटिक्स में जो चैप्टर हमारा चल रहा है, प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन, वहाँ पर जाके हम बाइनोमियल थ्योरम देखने वाले हैं. उस बाइनोमियल थ्योरम के बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनोमियल थ्योरम इन मैथ्स. बाइनोमियल थ्योरम की मदद से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं that this is equal to 1 plus this is equal to 1 plus half
इंटू 273 अपॉन टी, ये हाफ इधर आता है बस। और इसके आगे के सारे स्टेप्स हम निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, दैट विल सी इन वाले लेक्चर। तो सिर्फ दिस इज simplified like this. So this is V upon V0, and therefore what is V0 is equal to half into 270 T upon 270 actually. So this is V, this is T is equal to T plus 270. Let me just correct this. Let me just correct this. इसको मैं correct करता हूँ। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, जैसे देखो V upon V0 is equal to square root of T is equal to T plus 273 divided by T0 is 270. तो ये कुल मिलाकर क्या बन जाएगा, दिस इज T upon 273 plus 1 ब्रैकेट रेस्ट टू हाफ, और बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ये हाफ इधर आता है, सो दिस बिकम 1 प्लस हाफ इनटू T upon 270 प्लस जो आगे के टर्म्स है उसको निगलेक्ट करें। बाइनोमियल थ्योरम क्या है वो हम उस टॉपिक में देखेंगे, इसलिए अभी मैं आपको यहाँ पर बता के कोई समझ नहीं आएगा। सो देयरफॉर V upon V0 इज दिस, ओके। तो ये V0 आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर जाकर, मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर करने देते हैं, इसलिए ये व्हाट V is equal to V0 into 1 plus T upon 273 का डबल 336 और 546, इस तरह से ये बन जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? अब V0 मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड। यू कैन सब्स्टिट्यूट दैट ओवर हियर, ये बन जाएगा V is equal to 332 प्लस 332 अपॉन 546 इंटू T, ये होगा। सो उसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे दैट कम्स आउट टू बी V is equal to this is V0, so this is V0 प्लस ये जो फ्रैक्शन है दैट कम्स आउट टू बी 0.61 टाइम्स, ओके। तो ये है इक्वेशन नंबर 8.50 जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, फिर चेक किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 8.50, यही है इक्वेशन। यू सी दैट, इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम और एक चीज आगे आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। इफेक्ट ऑन ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। मुझे आपसे कुछ पूछना है, यू नो कि आपने देखा होगा कई बार कि भाई पानी गर्म हो रहा है, दिस इज द वाटर व्हिच इज बीइंग हीटेड, ठीक है, इसको हीट किया जा रहा है। तो जैसे ही ये हीट होगा इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, एंड बॉइलिंग होने के बाद क्या होता है, यू सी दैट वेपर्स आर कमिंग, और ये वेपर्स किस डायरेक्शन में चलते हैं, दे मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? नो वेपर्स की वजह से ये जो एयर होता है that air becomes moist air, that air becomes moist air, और वेपर्स को छोड़ के जो भी कुछ एयर होगा समझो कि यहाँ का, if I'm talking about this air, that air is dry air, that air is dry air। तो moist air ऊपर जाता है मतलब वो हल्का होता है, moist air ऊपर जाता है मतलब वो हल्का होता है, dry air से ऊपर चला जाता है, so its weight is less, isn't it? Its weight is less. So if I'm talking about the density of moist air and density of dry air, तो moist air हल्का होता है मतलब उसका density कम होता है। Do you agree with that? Do you agree with that? Isn't it? Now let's come back to this question, this
formula for speed of sound. Speed of sound is given by square root of gamma p by rho. Square root of gamma p by rho. ये होता है the speed of sound, isn't it? So in that case, can I say कि अगर velocity is inversely proportional to the square root of rho, मतलब जिसका rho कम वहाँ पर velocity ज़्यादा. So if I am talking about velocity of sound in the moist air and velocity of sound in the dry air, यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जहाँ जिसका ये कम होगा उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा. So velocity of sound in the moist air is more than velocity of sound in the dry air. Is that understood? And the same thing is said here in this thing. यहाँ पर हमने वही बताया. Velocity of sound in the moist air is more than velocity of sound in the dry air. The same thing I have explained you here. Is that clear? इसको मैंने मदद ली है मॉइस्ट एयर, मतलब ये जो पानी को हम उबालते हैं उसकी मदद ली है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एनी डाउट्स अबाउट इट? ओके, आई थिंक with so let me talk about Doppler's effect here quickly. समझो कि यहाँ पे I consider a moving train, a train which is traveling. ठीक है, there are various possibilities that we have to consider. कि ये समझो एक ट्रेन है और बस है वगैरह. ठीक है, इस बस के अंदर एक हॉर्न लगा हुआ है. समझो तो हॉर्न बजेगा. हॉर्न बजेगा तो यहाँ से निकलने वाली जो साउंड वेव्स है ऐसे ट्रैवल करेंगे. आई डोंट नो whether this is moving or not. So let me say here, ये जो बस है वो उसका स्पीड है कुछ, velocity speed of sound is v. Let me say the speed of sound is v, and ये जो बस है दिस इज बस इज आल्सो मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी. इसका स्पीड मैं बोलूंगा vs. यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ये इस तरफ भी मूव कर सकता है या स्टेशनरी हो सकता है, उस तरफ भी. लेट मी से दैट v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. अब इसमें बस जो है देयर आर वेरियस पॉसिबिलिटीज हियर. ठीक है, आप लोगों ने कई बार देखा है कि ये जो बस या अगर आप ट्रेन के लिए खड़े हो तो ट्रेन के लिए, तो ये जो बस या ट्रेन जब हॉर्न बजाते बजाते आपकी तरफ आती है तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ नजर आता है, एक्सपीरियंस होता है. जैसे ही वो आपके यहाँ से पास होकर आगे चला जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी अलग सुनाई देता है. आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, स्पेशली अगर आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पर हो और कोई फास्ट ट्रेन वहां से गुजर रही है तो ट्रेन का आते समय उसका जो हॉर्न है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ता हुआ सुनाई देता है, और जैसे ही आपसे वो आगे गुजर के आगे चला जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होता हुआ. So we say the here the vehicle is approaching the observer. It also can happen that the vehicle is receding away from the observer. Receding away मतलब वो observer के यहाँ से दूर जा रहा है, ऐसा भी possible है, isn't it? तो इसके लिए एक generalized formula हम use करने वाले हैं, where n is the frequency of, or we say n is the frequency of, or we say actual frequency. n is the actual frequency. और इसकी वजह से जो हमें सुनाई देती है फ्रीक्वेंसी वो अलग होती है. ठीक है, so I'll call this as n dash is the apparent frequency. Apparent frequency. और जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि apparent frequency is equal to something something into n, something something into n. और ये मैं लिखूंगा it is v minus vo and v minus vs. ये एक जनरलाइज फार्मूला होगा और इस फार्मूले पर हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे.
दिस इज द जनरलाइज्ड फार्मूला। इसमें सारे केसेस हम कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर VO and VS are positive if they are in the direction of velocity of sound, in the direction of velocity of sound, else they are negative, else they are negative। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। Exactly, we'll be discussing some 8 cases related to this, 8 cases। So I'll stop here। Doppler effect क्या है वो मैं आपको डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। Start here। Goodbye।